करता है या फिर 10 पेज 10 पेज राइट करता है, अ पर्सन ए कैन राइट 10 पेजेस पर डे, तो दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस पर्सन। अब मैं ये कहता हूँ कि नहीं, वो 1 घंटे में अगर 5 पेज टाइप करता है, इन एन आवर ही कैन टाइप 5 पेजेस, तो दैट इज ऑल्सो एफिशिएंसी ऑफ ए इन per hour. Okay, so efficiency per hour, per second, per minute and per day भी डिसाइड की जा सकती है। now and the total work is what time into efficiency। जैसे आपने कहा a person can take a day in for typing a 10 pages। okay, एक आदमी जो है वो एक दिन में 10 पेज टाइप करता है। ओके, तो एफिशिएंसी 10 पेजेस पर डे की है, बट he typed all the papers in 20 days। What will the, how many number of papers are total? So you will say that 200 number of total papers are there। okay, so the total work is what? Time into efficiency is the total work, yes or no? Now then we will discuss about the efficiency and total work again। efficiency is also there, the one upon time taken to do a work। just take an example, you can do a piece of work in 10 days, so you can also say 1/10 work done by A in single day। okay, now work done is also man into day into R, which is MDH। okay, so move to the next। we'll start from the very basic with the type 1, and type 1 is very basic, बहुत easily आप समझ जाएंगे और बहुत easily आप समझ सकते हैं। now so first of all we take an example, just like first question is that A can do a piece of work in 15 days and B can do the same piece of work in 20 days। In how many days A and B do this work together? अब देखिए, ये मैं सिंपली आपको ये बता दूं कि आप में से जितने भी बच्चे टाइम एंड वर्क के बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आप लोग टाइम एंड वर्क से इंट्रोड्यूस हो लीजिए, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेसिक पढ़ना बहुत जरूरी है। जितने भी बच्चों ने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है टाइम एंड वर्क में, तो सबसे पहले उनके लिए मैं आपका फ्रेमवर्क तैयार करूँ। ओके, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द टफ लेवल। ओके, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना, शॉर्ट में राइट करना जरूर सीख जाए। जैसे ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, तो मुझे इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ इतना लिख दूंगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज मीन्स ए इज इक्वल टू 15। so the easily understandable A is equal to 15 means what? A can do it in 15 days and B can do the same piece of work in 20 days. It means B is equal to 20 days. So whenever I write B is equal to 40 days, then you will understand automatically that B will complete a piece of work in 40 days. Yes or no? Now, and then I discussed with you कि टाइम एंड वर्क में सिर्फ दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज टोटल वर्क एंड सेकंड वन इज एफिशिएंसी ऑफ अ पर्सन इन अ डे और इन एन आवर और इन मिनट। ओके, सो चाहे क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ हो, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें निकालनी है क्वेश्चन में। फर्स्ट इज टोटल वर्क एंड सेकंड वन इज एफिशिएंसी। सो जैसे ही आप क्वेश्चन शॉर्ट में लिख लेते हैं, देन आफ्टर आपको ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी कैन डू इट इन 20 days, देन find out the total work immediately। So find out the total work immediately, and total work is getting by the taking LCM of these two numbers 15 and 20। This is 60, so 60 will be the LCM, then you will consider the 60 as our total work। okay, अब simply आप समझिए कि 60 is the total work and A can do all the work, it means 60 in 15 days, then how much work done by in a single day? So you will say the 4 units of work done by A in a single day। Yes or no? So 60 total work in a 20 days, so 3 work done by B in a single day, and now the total A plus B together can complete a piece of work is 7, and now the 60 total work है and per day का काम इनका 7 है, and when you will divide it will become 8 4 by 7 days to take complete by A and B together to complete a piece of work। अब देखिए सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने ये कहा कि A can do a piece of work in 15 days and B can do it in 20 days। फर्स्ट टेक अ LCM। अब आप सभी कहेंगे सर विदाउट LCM क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। ऐसा कुछ कंडीशन थोड़ी है कि LCM ही लेना है, नहीं, आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे किसी ने अगर लेट कर लिया
if somebody is taking 100 as a total work, so you can also let this 100 total work है 15 days में ए ने उसे complete किया है, then the per day work is 6 2 by 3, yes or no? And 100 is the total work and done by B in 20 days, then the per day work is 5 work per day. A plus B can together can 11 2 by 3 piece of work in a day. 11 3 is 33 plus 2 is 35. 100 by 35 into 3 is the total work, and when you divide it by 5 7 is 60 by 7, and you will automatically receive this answer again. Yes or no? So as we all say, without taking LCM, you can also solve this question by letting any value as the total work. Okay. Now I'm solving this question by the different method, which is fraction method. So fraction method is what? As I'm telling you, if A can do a piece of work in 15 days, then how much work done by A in a single day? So you will say 1 by 15. Yes or no? B can do a piece of work in 20 days, then how much work done by B in a single day is 1 by 20. In a day, A can do 1 by 15 work. In a day, B can do 1 by 20 work. Then find in a day, they will both together can complete a piece of job. So I will say 1 by 15 plus 1 by 20, it means the 60, 15 4s are 12, 23s are the 7 by 60 work done by A and B together in a single day. So how much time they will take to complete whole the job? So you will say 60 by 7 days, obviously. And now the same answer is also created by this method again. Okay. Hope you all guys understand. Now, अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग कंफर्म करने के लिए, आप लोगों को अगर समझ में आ जाता है तो मेरे पूछने पर कंफर्म करने के लिए आप लोग टाइप डी फॉर डन इन अ कमेंट बॉक्स. ओके, टाइप डी इन अ कमेंट बॉक्स. Now move to the next question. Next question is very easier. A, B and C can do a piece of work in 12, 15 and 20 days. So just put it out. A can do a piece of work in 12 days, B can do it in 15 days and C can do it in 20 days. Just taking LCM 12, 15 and 20, LCM is 60, the total work is 60. अब आपको देखो ये पता पड़ गया होगा कि LCM, why we are taking LCM? Because of by taking LCM, the number will be in pure value, मतलब इंटीजर वैल्यू में आता है, डेसिमल में नहीं आता है. जैसे लास्ट में हमने 100 कंसीडर किया था तो हमारा जो वैल्यू है पर डे का वो एक फ्रैक्शन वैल्यू में आने लगा था, तो वहां पर कैलकुलेशन करना इजी नहीं होता है. ओके, तो मेरा सलाह यही रहेगा, मेरा जो एडवाइस है वो ये रहेगा कि आप लोग टोटल वर्क का एलसीएम लेकर ही यूज करें. ओके, तो 60 इज द टोटल वर्क एंड पर डे वर्क इज 5, per day work is 4, per day work is 3. A plus B plus C together can do 5 plus 4, so 9 plus 3 is 12. 60 work and per day they can do 12 work per day. So the answer is 5 days. Yes or no? So it is very simple. This is the first type, very first type, or it is very simple. This is the starting of the time. Okay, and wait for the tough level. Wait for the tough level. Now again a very simple question in front of you. A alone can complete a piece of work in 12 days. A alone can complete a piece of work in 12 days. A and B together can complete it in 8 days. How long B alone take to complete the work? How long B will alone take to complete the whole work? And now we are taking LCM 12 and 8. What will be the LCM of 12 and 8? It's 24. The 24 is considered as total work. 24 work done by 12 days, so 2 work per day taking by A, and A and B 24 work in 8 days, so 3 work per day by A and B. A and B together can complete 3 work per day, and A alone can do 2 units work per day. So how much work done by B in a day? So you will say only 1, because of A और B साथ में 3 काम कर रहे हैं and A अकेला 2 काम कर रहा है, तो B कितना काम कर रहा होगा? सिंगल यूनिट. Okay, so 24 work done by B
So B work 1 unit per day. The total answer is 24 days. So I hope you all understand, guys. Yes or no? Are you all done? Yes, sir. Okay. Now, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं और आगे बढ़ते हैं नहीं, क्योंकि अब देखिए सिंपल रिदम है, सिंपल सब कुछ बिल्कुल यही चलने वाला, सेम सेम। अब क्वेश्चन अगर टाइप 1 से एग्जामिनर पूछता है तो कुछ इस तरीके का पूछता है, क्योंकि इतना सिंपल जितना अभी तक अपन ने पढ़ा उतना सिंपल नहीं होता, थोड़ा सा वो टफ करेगा। और वो थोड़ा सा टफ अगर टाइप 1 में कर सकता है तो क्या करेगा वो देखिए। A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together can do it in 15 days. And C and A together can do it in 20 days. So first taking LCM, 12, 15 and 20. LCM is 60. So 60 is the total work. Total work 60 done by in 12 days. So 5 unit per day, 4 unit per day and 3 unit per day. So sum कीजिए. So A plus B plus B plus C plus C plus A is twice of A plus B plus C. 5 plus 4 is 9 plus 3 is 12. Okay, so A plus B plus C जब 2 टाइम्स वर्क करते हैं पर डे तब 12 वर्क करते हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा अगर सिंगल टाइम वर्क करेंगे तो कितना करेंगे। A plus B plus C can do 6 unit per day. And now the 60 work done by A, B and C together by 6 unit per day in 10 days. Yes or no? आपको देखिए हर क्वेश्चन में इन टाइम एंड वर्क, हर क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क बाय एलसीएम निकालना है और पर डे का इंडिविजुअल वर्क आपको निकालना ही निकालना है। ये बिल्कुल आप बिल्कुल मान के चलिए कि आपको करना ही करना है। और ये सबसे सिंपल लेवल है, मतलब इतना मैंने उन लोगों के लिए पढ़ाया जो लोग टाइम एंड वर्क को बिल्कुल नहीं जानते, तो वो लोग पहले जान ले और फिर इस लेवल तक जाएंगे हम टाइम एंड वर्क में जिसमें कोई भी किसी क्वेश्चन को हाथ तक नहीं लगा पाएगा, मतलब उसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और केप जेमिनी और एसेंचर ये कंपनी आपको बिल्कुल नहीं बख्शेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है ना। सो द सेम क्वेश्चन अगेन ऑन योर स्क्रीन। ए एंड बी टुगेदर, स्पीड को कंफर्टेबल सभी को, स्पीड में कोई इशू तो नहीं है, स्पीड थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या। क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना है, शॉर्ट में रीड करना है, शॉर्ट में सॉल्व करके निकल जाना है ना। नाउ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 days and B and C together can do it in 120 days and C and A and C can do the same piece of work in 90 days. And now the taking total LCM by so LCM is 90, 120 and 72 is what? 360. 72 5s are 360, 123s are 94. Now sum it out. 5 plus 4 plus 3 is 12. और आप पहले से जानते हैं कि A plus B plus C का ट्वाइस होगा, yes or no? Now the A plus B plus C will be 6 unit per day. They will do 6 unit per day. Okay, 360 work done by A, B and C together. So the 6 unit per day and A, B and C together is 360 unit in 60 days. Yes or no? Are you all done? Now, so move to the next. टाइप 1 बहुत ही सिंपल है, लेकिन टाइप 1 में भी 2 क्वेश्चन लास्ट में आपको देखेंगे अच्छे, ठीक है। तो वेट फॉर द नेक्स्ट। A and B together can do a piece of work in 10 days. A and B together can do a piece of work in 10 days and B and C together can do it in 15 days and C and A together can do it in 20 days. Now the total work is 60. Total work is 60. 60 work done by A and B together in 6 unit per day, 4 unit per day and 3 unit per day. So twice of A plus B plus C can do 6 plus 4 plus 3 is 13. So A, B and C together can do 6.5 unit per day. By dividing 60, you can find out the value of A and B. A and B and C together can do it in 10, 15 and 20. 60 is the total work. 10, 15 and 20. Okay. अब आपसे देखिए ये नहीं पूछ रहा है कि A, B और C कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछ रहे हैं in how many days C can do the work alone. So first आपको ये तो निकालना ही है A, B and C together can do 6.5 unit in a day. Yes or no? And what they are asking to you? They are asking to you is that about the C. Yes or no? So find out the efficiency of C.
So I will say A and B together can took 6 units. Yes or no? And all the three together can done 6.5 units. While A and B also took 6 units, so C will take only 0.5 units per day. For doing 60 work by the 0.5 unit per day, you can say 120 days will taking by C. Yes or no? Yes or no? Am I clear to all of you? Yes, sir. Okay. Now, अब थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाते हैं भाई, ठीक है? थोड़ा सा स्पीड और एनहेंस करते हैं और थोड़ा सा लेवल भी एनहेंस करेंगे. नाउ, तो ये क्वेश्चन अब आपको करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज A plus B together can do a piece of work in 4 1/2 hours. It means what? 9/2 hours. Yes. B and C together can do in 3 hours. C and A working together can do 4 to the 8 plus 1 is 9/4 hours. What they're asking, all of them begins the work at the same time. Find how much time they will take to finish the whole job. Okay. So now taking the LCM, 9, 3 and 9 LCM will be 9. So 9 is the total work. By dividing 9/2, you will get 2. By dividing 9/3, you will get 3. And by dividing 9/4, you will get 4. So 4 plus 3 plus 2 is 9 of the sum of A plus B plus C of twice. Yes or no? By twice, you can easily say this. A plus B plus C together can do only 4.5 units per day. Yes or no? And you want to do 9 units. So 4.5 units per day, they will do hold the job in only 2 days. Yes or no? देखिए, मैं आपको असली लेवल बताता हूँ. एक्चुअली अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर ये तो बहुत सिंपल है, ये हमें क्यों बता रहे हैं. मतलब मैंने कहा ना कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक से उठा के चले हैं, जिससे जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि टाइम वर्क क्या होता है, जिससे उन लोगों को थोड़ा पता पड़ जाए, आइडिया लग जाए, और फिर हम अपना लेवल बढ़ा देंगे. क्लियर? अब अगर आप एक्चुअली यहीं पे लेवल अगर परखना चाहते हो तो देखिए, कंपनी एक्चुअली आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती है डायरेक्ट कि आप बस उसका सॉल्यूशन करके देंगे. नहीं, एक्चुअली वो ये चाहती है कि बंदा कितना स्मार्ट है ये चेक करना हो. ठीक है, कैसे? ऐसे देखो, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पैटर्न बेस्ड. ये आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कहेंगे √57827 into 57829 plus 1. What will be the answer of this expression? What will be the answer of this expression? So they are asking to is that type of question. Clear? तो अब देखिए, अब अगर यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा माइंड ऑपरेशन लगा देंगे तो आपको पता पड़ेगा कि ये देखिए, आप अगर बाय कैलकुलेटर, मैं तो ये कह रहा हूँ बाय कैलकुलेटर भी अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैन्युअली तो सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ 4/4 डिजिट के मल्टीप्लाई आप नहीं जानते हैं कैसे करते हैं, और बाय एडिंग 1 यू कैन टेक स्क्वायर रूट, सो इट इज नॉट पॉसिबल. यस और नो? So by using calculator, you also can not possible to solve this question. Yes or no? So the answer will be received by only the concept. How? तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि there are the two numbers having difference 2. There are the two numbers having the difference 2. तो पैटर्न वाइज आप क्वेश्चन ले लीजिए, आप अपने मन से क्वेश्चन एक बना लीजिए अपने मन में कि हम ऐसे दो नंबर ले लेते हैं जिनका डिफरेंस 2 है, जस्ट लाइक 2 and 4, and 1 is the constant value. So by adding 1 you will receive √9. अपना सभी लोग माइक म्यूट करके रखें. हर्ष, by adding 1 you will have √9. √9 will be the answer 3. एंड जब भी आप पैटर्न बेस्ड पर काम कर रहे हो, तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पैटर्न पर काम कर रहे हो तो ये बात हमेशा याद रहे कि आपको 2-3 अटेम्प्ट तो कम से कम करने, ट्वाइस और थ्राइस आपको अटेम्प्ट करके आंसर गेट करना है. हाउ? तो मैंने अगर कहा होता कि मान लो आप 7 and 9 लेते हैं एंड प्लस 1, 7 9 is 63 plus 1 is 64. The answer of √64 will be 8. And again 11 and 13 plus 1, तो आप कहेंगे 11 and 13 is 143 plus 1 is 144. The answer is 12.
So now observe the answer. How will get the answer? 2 and 4. When you take 2 and 4, the numbers, the answer will be 3. The between number is our right answer. 7 and 9 are the answer is 8. 11 is 13. The answer will be 12. Then the answer will be of this question is 5, 7, 8, 2, 8. Yes sir. तो आप इजीली इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हैं बाय द कंसेप्ट. ओके नाउ तो अब देखिए और भी ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं हम टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वो आपको पूरा कंसेप्ट चल जाना पड़ता है फ्रॉम द वेरी बेसिक. ऐसा नहीं है कि मैं आपको टाइप 7 एक साथ ही पढ़ा दूंगा तो फिर आपको समझ पाएंगे. टाइप 1 से आप समझेंगे तो आपको बिल्कुल सारी चीजें आराम से समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं. जैसे रीड दिस क्वेश्चन. A man and a woman and a boy together can finish a piece of work in 6 days. A man and woman and a boy together can finish a piece of work in 6 days. Okay. If a man and a woman can do a piece of work in 10 days and 24 days. Sorry. So man can do in 10 days and woman can do in 24 days. The days taken by the boy to finish the whole working. तो मैं कहूँगा फिर आप सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए. So 6, 10 and by taking the LCM of 6, 10 and 24, it's 120. So 120 does work done by the A, M, W and B in 6 days. That per day work is 20 and the per day work is 12 and the per day work is 5. Yes or no? अब आप मुझे बताइए कि M, W and B together can do 20 units and M is only done 12 units and W is only done 5 units. So 12 and 5 is 17 and MWB is 20. Then now the B is 3. So 120 work done by B by 3 units per day can take 40 days to complete the whole job. Yes or no? Yes or no, guys? Are you all done? Yes, sir. Okay. बड़ी बुलंद आवाज है भैया आपकी. चलिए स्टेबल रहिए भाई थोड़ा सा. देखो एक्चुअली आप लोग अगर प्रॉपर ध्यान देंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा. थोड़ी देर में अभी क्वेश्चन जब हाइक हो जाएगा, लेवल हाइक हो जाएगा, तब और ज्यादा अच्छा लगेगा. ठीक है. अभी ये फर्स्ट टाइप था. अभी आपने फर्स्ट टाइप देखा. मैं आपको बता दूं, इंट्रोड्यूस करा दूं टाइम एंड वर्क से. टाइम एंड वर्क में देयर आर 13 टाइप्स. टोटल 13 टाइप्स इन द टाइम एंड वर्क इन लेवल 1, in our level 1. Then move to the level 2 and move to the level 3. फिर पता पड़ेगा कि कितना टाइम एंड वर्क आता है, किसको आता है, कैसे आता है ना. तो ये जो टाइप बने ये सभी को आता है. अगर किसी ने हल्का एप्टीट्यूड भी पढ़ा हुआ है तो आपको ये जरूर आए. नाउ A can do a piece of work in as much as time as B and C together can do it in. What they are saying? They are saying is that A can do a piece of work in as much as time as B and C together can do it in. Yes or no? And now, so A की efficiency जो है वो B plus C दोनों के सेम है. यही बात करें. If A and B together can do it in 10 days, A and B together can do it in 10 days, and C alone can do it in 15 days. Then find in how many days B will complete the whole work alone. वाह, ये क्वेश्चन अब अच्छा आया. देखिए 10 और 15 LCM taking, so 30 will be the LCM and the 30 will be the total work. Total work is 30 and the A and B together can do in 10 days. The total unit per day is 3 and total unit per day of C is 2. And now by adding A plus B plus C can do 5 units per day. Yes or no? And what they want to ask, what they are asking to is that about the B, sorry. So आपको ये बताना है कि total work is 30 and how many days will take by B to complete this 30 work. Yes or no? So first you have to find out the value of B in a per day. Yes or no? The value of B in a per day is that A plus B plus C is 5, A plus B is 3 and C is 2. Can you find out the B here by using this equation and using this equation also? So you will not find out this equation. You will not find out the value of C by these equations. Okay. So when you using this equation into this, so A is equal to B plus C. So
तो b प्लस सी की वैल्यू अगर आप a यहाँ पुट कर देते हैं और a यहाँ पे हो जाता है, तो आप मुझे बताइए when a taking twice done 5 units, so a will do 2.5 units per day and 2.5 units per day, and a will do 2.5 units per day, sorry, a will do 2.5 units per day, and you also know that a will do 2.5 units per day and a and b together can do 3 units per day, then the b will do 0.5 units per day. By using 0.5 here, you will have your answer is 60 days by taking by b to complete the whole job. Yes or no? क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल था, देखिए बस उसी को थोड़ा सा अपडेट किया, प्रीवियस क्वेश्चन की हुई को ही हमने थोड़ा सा अपडेट किया और क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जैसे नो नाउ मूव अहेड और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, और सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आप लोग करके देखिए जल्दी से, आप लोग करके देखेंगे इस क्वेश्चन को और आंसर देंगे, ठीक है। देखो साथ में मेहनत करना पड़ेगी भाई सभी को, ठीक है, ऐसा नहीं है मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप साथ में मेहनत करते रहेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन तक आप पहुंच जाएंगे, लेकिन सिर्फ मैं अगर सॉल्व करा दूंगा और आप देख लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। नाउ द आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, टेल मी, comment box, type in the comment box, please type your answer in comment box if you will receive your answer. Okay, a takes as much as time b and c together can do it in, yes or no? So a is equal to b plus c, simple. While a and b together can do it in 10 days, while a and b together can do it in 10 days, in how many days will this work completed by b alone? Oh yeah, here one line is missing, so while यहाँ पर एक लाइन मिस है, while c can do this piece of work, मैं सिंपली लिख देता हूँ 50 डेज, ठीक है। तो सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 50 डेज, ये भी यहाँ पर दिया हुआ था जो कि इंग्लिश वाली लैंग्वेज में मिसिंग है, बट हिंदी में अवेलेबल है आपको, ठीक है। सी कैन डू इट इन 50 डेज, सी कैन डू इट इन 50 डेज। बेटा माइक म्यूट करके रखिए सभी लोग। Jatin, now A and B together can do it in 10 days and C can do it in 50 days. The total LCM is 50 and the total work is 50. By taking LCM, you will receive 50. So 50 is the total work and total work is 50 done by A and B in 10 days. The 5 units per day done by A and B together. And the 1 unit per day A, C done by together. A plus B plus C can do 6 units when they are working together. By using B and C here, is equal to A, then you will have 2A is equal to 6. That means A will do 3 units in a day. When A will do 3 units in a day and A and B together can do 5 units in a day, then you will say that B will do 2 units in a single day. And they are asking to you about the B. B can do 2 units in a day, then find in how many days, how much he will take to complete the whole job. The answer is 25 days. Yes or no? Are you getting? सभी को समझ में आ रहा है? If anybody is there, Yes, sir. who will not understand my language or understand any concept, so please ask me. Okay? If you have any doubt, then type it out in the comment box. Okay, immediately, not waiting so much. Next question, and the next question is little bit up to the level. Okay, what is saying? What is, so the question is A and B can do a piece of work in 10 days. And now, so everybody stop here and look at this question and concentrate on this. Okay, A and B together can do a piece of work in 10 days. A and B together can do a piece of work in 10 days. Okay, and now move ahead. A works 2 1/2 days and B works for 8 1/2 days.
A works for 1/2 days. It means A works for 1/2 days and B works for 1/2 days. Then half of the work has been completed. And now the work was completed half. क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे A and B together can do it in 10 days. मतलब A और B साथ में काम करें. मतलब टोटल वर्क देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. 10 दिन तक अगर A और B साथ में काम करते तो काम खत्म हो जाता है. यस और नो? बट फिर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सेम बात ये कही कि अगर A जो है, A इज द पर्सन, A अगर हमारा 2.5 डेज तक काम करे एंड B हमारा 8.5 डेज तक काम करे तो काम सिर्फ हाफ ही हो पाता है. हाफ ही हो पाता है, बट यहाँ पर तो पूरा काम हुआ है, तो इसको मैं ट्वाइस कर देता हूँ. ट्वाइस, देन द वर्क इज कंप्लीटेड कंप्लीटली. यस और नो? सो बाय सॉल्विंग दिस 10A plus 10B and 5A plus 17B. So A is here and B is here, so 5A and 7B. A and B efficiency आपको मिल जाएगी. A can do 7 work in a day and B can do 5 work in a day. When A can do 7 and B can do 5, so they can together work 12 in a day. And what they are given you in the question, they give you in the question is that A and B can complete a piece of job in 10 days. अब आप ये जानते हो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं A and B together can do 12 work in a day and they work for 10 days. The total work will be 120. In how many days will B do complete the whole the work? So B can do only 5 units in a day. So in how many days B will complete 120 work in a day? Okay. So by putting 5 here, you will have your 24 answer. But this is not the short method to solve this question. This is not the short method. ये आपका एक प्रोसीजर. अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन सिखाए वो सभी बाय प्रोसीजर सिखाए, जिससे आपको कोई कंसेप्ट में कोई भी किसी प्रकार का डाउट ना हो. यस नो? बट इस क्वेश्चन को अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाता हूँ, और शॉर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना होगा. कैसे? हाउ? ना, मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि A and B टुगेदर कैन डू इट इन 10 days? अगर मैं आपसे ये कहता कि बताइए अगर A और B ने 5 डेज तक वर्क किया तो इट मीन्स व्हाट, कि उन्होंने आधा ही काम किया होगा. यस नो? A and B together can do a piece of work in 10 days. It means is that कि A भी 10 दिन तक किया है और B भी 10 दिन तक किया है. भाई A ने भी 10 दिन तक काम किया है and B is also engaged for 10 days. Yes or no? And now, and then आपको ये दिया गया A work for 1/2 days. A ने 1/2 days काम किया, it means 2.5 days वर्क किया. and B ने काम किया 8.5 days. आप मुझे बताइए यहाँ पर जब A ने 2.5 days काम किया है, B ने 8.5 days काम किया है, तो काम तो आधा हुआ ना, लेकिन आपका काम तो पूरा करवाना है आपको. तो मैं कहूंगा आप इन्हीं को ट्वाइस कर लीजिए. मैं कहूंगा अगर आप इसको ट्वाइस करते हैं, मतलब 2.5 दिन ना करवाकर 5 दिन काम करवाते हैं, 8.5 दिन ना करवाकर 17 दिन काम करवाते हैं, 17 डेज काम करवाते हैं, तो आप कहेंगे यहाँ पर काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट. यस नो? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं 17 को क्या ऐसे नहीं लिख सकता कि 5 + 12? बोलो, लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना? अब मुझे बताइए A ने भी 5 डेज वर्क किया होता और B ने भी 5 डेज वर्क किया होता तो काम आधा ही हुआ होता. क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा जा रहा था कि A और B किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और आप ये कह रहे हो कि A ने भी 5 दिन किया और B ने भी 5 दिन किया, तो काम तो आधा ही हुआ होगा. तो बचा, जबकि यहाँ तो काम पूरा हुआ था, तो बचा आधा काम किसने करा? आप कहेंगे सर बचा आधा काम जो बचा हाफ वर्क है वो B ने किया है. इन हाउ मेनी डेज? इन 12 डेज. यस और नो? तो B अगर आधा काम 12 दिन में करता है अकेला, B अगर alone can do a piece of work in 12 days, so the total work completed by B in 24 days. Are you all getting my point, buddy? Yes, sir. Okay. And then we will discuss another method to solve this question out. देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे मेथड डिस्कस कर रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन और शॉर्ट हो सकता है.
जैसे इस मेथड को अगर आप यूज करते हैं और आप इस क्वेश्चन को ओरली करना चाहते हो तो आप इस मेथड का यूज करेंगे। अदरवाइज आप अगर पेन पेपर से यूज करना चाहते हो आप शिफ्टिंग मेथड से जाइए। शिफ्टिंग मेथड क्या कहता है? वो ये कहता है कि 10 डेज ए ने वर्क किया, 10 डेज बी ने वर्क किया, टोटल वर्क इज डन। A work for 2.5 days and B work for 8.5 days and the half work was done. When you twice of these numbers, you will have 10A plus 10B and 5A plus 17B and the total work is also there and total work is also there and the same work is also there. Yes or no? अब मैं ये कहूंगा देखो शिफ्टिंग लगाइए, बैलेंसिंग कीजिए। बैलेंसिंग कैसे? ऐसा समझिए, थोड़ा देसी भाषा में समझो कि 10 दिन तक ए ने काम किया और 10 दिन तक बी ने भी काम किया। बोलो हाँ, 10 दिन तक ए ने भी काम किया और 10 दिन तक बी ने भी काम किया। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो 5 ही दिन तक ए ने काम किया और 17 दिन तक बी ने काम किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए को अगर 5 दिन का छुट्टी दे दिया जाए, ए के हमने 5 दिन की छुट्टी क्या दे दी, मतलब ए जो है वो 5 दिन नहीं आया, ए जो है वो 5 दिन वर्क पर नहीं आया, तो बी को कितने दिन एक्स्ट्रा आना पड़ा बेटा? बी को आना पड़ा 7 दिन एक्स्ट्रा। बोलो हाँ, बोलो हाँ, यस सर, नो? हाँ सर। बात सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं अगर हाँ। पूरा काम मुझे बी से कराना है, अगर मुझे पूरा काम बी से ही कराना है तो मैं 5 दिन की एक और छुट्टी दे देता हूँ और 7 दिन बी को और बुला लेते हैं। तो बेटा 7 दिन और 17 दिन 24 दिन में बी ने काम खत्म कर दिया। अब बताओ कैसा लग रहा है? तो क्वेश्चन को करने के कई ये मेथड इजी है। था सर। सबको देखो इजी तो बहुत है। अभी टाइम एंड वर्क मैंने बताया ना, जैसा कि मैंने आपको बताया 250 ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चंस आई विल डिस्कस इन द टाइम एंड वर्क। ओके, सो हैव सम पेशेंस एंड लुक ऑल द क्वेश्चन वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि अचानक नहीं पहुंचा दूंगा आपको हाई लेवल पर, नहीं तो क्या होगा फिर समझ में नहीं आएगा। और मैं धीरे धीरे आपका बेस बनाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में। डोंट वरी एंड बी हैप्पी, इट विल टेक टाइम, द मेथड विल टेक टाइम। जिस चीज को करने में हमें जितना समय लगता है ना, जिस चीज को सीखने में हमें जितना समय लगता है ना, उसको करने में बिल्कुल समय नहीं लगता। ये बात क्लियर रखो। अगर आप जिंदगी में कोई भी चीज सीख रहे हैं तो सीखते समय आपको समय लगेगा। उस समय आप अगर जल्दीबाजी करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। जब आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन अगेन, ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। इट मींस व्हाट? ए एंड बी टुगेदर। अब देखिए मैं दो मेथड से आपको सिखाऊंगा, ये एक तो शिफ्टिंग और एक डायरेक्ट। तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज एंड व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग ए वर्क फॉर 3 1/2 डेज। तो ए ने काम किया 3.5 दिन एंड बी वर्क फॉर 11 1/2 डेज। तो बी वर्क फॉर 11 1/2 डेज, तो 11.5 डेज इनने काम किया नाउ, एंड देन हाफ ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड। बच्चे क्या कह रहे हैं? हाफ ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड बट आई वांट टू डू इट कंप्लीट, सो बाय एडिंग ट्वाइस। मतलब अगर ए से 3.5 दिन ना करवा कर 7 दिन करवा लूं और बी से 23 दिन करवा लूं तो काम पूरा होगा नहीं होगा? कंप्लीट होगा। बोलो। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस 7 को बस आप थोड़ा अरेंज करके लिख लो। इस 7 को आप कैसे लिखें? ऐसे 7 प्लस 23 को आप 23 को आप थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो आपकी इजिलिटी बढ़ जाएगी। 23 को हमने 7 प्लस, ओ ब्लैक पर ब्लैक नहीं चलेगा, 16 ऐसे। ओके, अब मुझे बताइए अगर ए ने 7 डेज वर्क किया, बी ने 7 डेज वर्क किया तो कहेंगे सर यहाँ तो आधे ही काम हुआ होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 14 डेज में कंप्लीट करते थे। बट ए ने 7 डेज, बी ने भी 7 डेज किया तो हाफ ही वर्क किया होगा। तो बचा आधा काम किसने कर दिया भाई? जबकि यहाँ तो पूरा काम हुआ था ना। तो बचा हाफ किसने किया है? तो बी ने किया है बच्चे। कितने दिन में किया है? कितने दिन में किया है? 16 डेज में। बी ने 16 डेज में हाफ वर्क किया है बच्चे। बी ने 16 डेज में हाफ वर्क कंप्लीट किया है। तो बेटा अगर बी 16 डेज में हाफ वर्क कंप्लीट करता है then he will complete the whole work in 32 days. Yes or no? Ashwani, why you commit the wrong answer? 30. Answer is 32. Okay. Have you got it? और आप में से जितने भी लोग तो आज क्लास में लेट हो गए हैं वो लोग, भाई आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लें। मैं आपके साथ एक और बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर रहा हूँ एवरीवन में, आपके चैट बॉक्स में आ गया होगा। तो सभी लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें एंड देन आफ्टर ज्वाइनिंग we will share the recording of this class on this group and the practice sheets and mock tests are also available and also share on this group. Okay.
So all you should have to join the WhatsApp group now. So move ahead and move to the next session and move to the next type of time work. This is the first type. These 13 questions are related to the first type of time work. And now move to the second type. Second type मैं बता दूं आपको फर्स्ट टाइप से भी बहुत ईजी है. बस आपको इतना सा पता होना चाहिए. देखिए बच्चे, फर्स्ट टाइप से भी इजियर है सेकंड टाइप. इसमें हमने 3 to 4 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं. एंड देन थर्ड टाइप से फिर स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क का लीविंग ज्वाइनिंग वाला सेक्शन. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सेकंड टाइप में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं वो ध्यान दीजिए. तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए सिंपल सी बात कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एज पर द एग्जाम्पल ए कैन डू 1/3 वर्क in 10 days. What is the meaning of it? What is the actual meaning of this? सर वो 30 दिन में पूरा काम कर सकता है. A will complete the whole work in 30 days. और it means is also this कि एक टोटल वर्क जो भी था उसका 1/3 पार्ट, 1/3 मतलब अगर उसके आपने 3 हिस्से कर रखे हैं बराबर 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 इक्वल पार्ट कर रखे हैं 3, तो उसमें से 1 पार्ट जो है वो 10 डेज में करता है. ठीक है. एंड अगर एक पार्ट जो है वो 10 डेज में करता है तो पूरा पार्ट मतलब होल पार्ट कितने दिन में कर देगा? 30 डेज. और ये आप डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे? तो ये आप निकाल पाएंगे बाय मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू हियर. जैसे आपसे कहा गया कि ए कैन डू 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क, 5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? तो द मीनिंग ऑफ दिस इज 5 into 10 by 2. The 25 days will taken by A to complete the whole job. Or you can also solve this by this 2 5s are 5 5s are 25. Yes or no? I got it. And again आपसे अगर ये कहा जाता है A can do 60% of the work in 15 days. A can do 60% of the work in 15 days. Then find in how many days the total work will be done by A. So 60% is what? 60% is 3/5. अगर आप लोग 60% का फ्रैक्शन जानते हैं तो आप जानते होंगे कि 3/5 को हम 60% कहते हैं. And now 3 5s are and 5 5s are 25. Yes or no? So A can do 25 days. A can take 25 days to complete a whole job. Yes or no? Am I clear to all of you? Clear to everyone? Yes sir. Okay. Now so the starting of type 2 और type 2 varies. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. ठीक है. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए. ये लोग आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूंगा. ठीक है, ये आप लोग करेंगे. A can do 1/3 of the work in 5 days. तो बेटा ये बताइए मैं यहाँ पे क्या लिखूं? सीधे सीधे बताइए. 1/3 of the work in 5 days. Then find in how many days A will complete the whole job. Obviously in 15 days. Yes. And B can do 2/5 of the work in 10 days. B can do 2/5 of the work in 10 days. अब मुझे बताइए 2/5 in 10 days है तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 25 days में होगा. Yes or no? 25 and 15 LCM is 75. 15 5s are 75. 25 3s are 75. So A plus B will be 8 in a day. A and B together can do a piece of work in. So total work कितना है? 75 and A and B together can do 8 work in a day. So 8 9s are 72. 3/8 days they will take to complete the whole job. Yes or no? So it is very simple. It is also easier than the first type. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, next. So move to the next question and then we will discuss about the type second. Amazing question of type second. Okay, एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप 2 में जो कि बहुत अमेजिंग होगा. अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे करते हैं. अब ध्यान दीजिएगा बच्चे सभी लोग, ध्यान देना भाई सभी लोग कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज वाले पार्ट से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा. कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि टाइम एंड वर्क सॉल्व करने के करीब 3 मेथड्स होते हैं. 3 important method to solve the time and work. First one is LCM method, second one is fraction method, and both the method I will discuss with you. Okay, and now we will discuss about the percentage method in this question. But percentage method is very unique because it is an updated method. और आपको दिखेगा कि वो कितनी इजीलिटी बढ़ाता है किसी क्वेश्चन में. Now A can do 1/4 part of the work in 21 days. So first of all मैं ये कहना चाहूंगा कि A can do 1/4 part of the total work in 21 days. It means 1/4 is what?
25%? Yes or no? 1/4 is what? 25% of our work in 20 days. And B can do also 25% of the work in 7 days. अब देखिए मैंने इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखा, मैंने इसको भी परसेंटेज में लिखा। अब यहाँ से थोड़ा परसेंटेज की लैंग्वेज समझिए, परसेंटेज के मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई सभी लोग, परसेंटेज मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो परसेंटेज मेथड ये कहता है, रिमेंबर वन थिंग, परसेंटेज मेथड बहुत कम लोगों को आता है, बहुत कम लोगों को। परसेंटेज मेथड ये कहता है टाइम एंड वर्क में जब भी आप परसेंटेज मेथड लगाते हैं तो आपके डेज सेम होने चाहिए। ये डेज जो है ना वो सेम होने चाहिए। क्या अभी सेम दिख रहे हैं? नहीं, 21 and 7 इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो मेक इट सेम बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन दिस इक्वेशन। तो आप ये कहेंगे सर कि इसको अगर मैं 75% लिख दूं तो मैं इसको 21 लिखने की इजाजत दे दूंगा आपको। बोलो बात सही है कि नहीं? यस और नो? सो अब आप सीधे सीधे ऐड कर दीजिए कि 21 डेज में 25 + 75 100% वर्क किया है किसने? ए और बी टुगेदर ने। पूछा क्या था? दोनों मिलकर कितने दिन में, मतलब इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द टोटल वर्क इन 21 डेज इज द राइट आंसर। अब देखो बच्चे पता है क्या करेंगे, बच्चे जो लोग नहीं जानते, परसेंटेज मेथड के बारे में नहीं जानते, वो लोग कितना फंसेंगे। वो लोग ये कहेंगे सर सबसे पहले तो 1/4 वर्क in 21 days, the total work is 84 days. Yes or no? And B can do 1/4 work in 7 days, the total work in 28 days. Now taking LCM, 8 और 84 का LCM लोगे तो 84 आएगा, 1 times 2 times 3 times sorry. So A और B together take 4 unit per day and 84/4 also, yeah, the right answer is 20. मैं कह रहा हूँ दोनों ही मेथड फिलहाल वेस्ट है, लेकिन अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है और कुछ थोड़ा सा भी अगर आपका 2-3 सेकंड भी टाइम बचता है तो बचा दो, क्योंकि कॉम्पिटिशन का रूल ये है कि अगर आपके 2-3 सेकंड भी चुराने को मिल रहे हैं आपको, चुरा लीजिए। समझे? यस और नो? नाउ अगेन a question in 3 members. A can do 1/2 part in 5 days. A can do 1/2 part in 5 days. So the total work in 10 days. B can do 3/5 part in 5 days. 3/5 part in 5 days. So I will say 15 days. B will take to complete the whole job. C will take 12 days to complete the whole job. And now you can do it out. You can do this question by yourself. 10, 15 and 12 LCM is 60. 60 वर्क पर डे 6, पर डे 4, पर डे 5। अब इतना तो मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी बच्चे, बताइए। 6 + 4 + 5 is 15 एंड 60 वर्क कंप्लीटेड बाय पर डे 15 यूनिट कर रहे हैं तो 4 डेज में कंप्लीट कर देंगे। यस और नो? पहले मुझे ये बताइए कि यहां तक सभी का बेस क्लियर है ना? अगर इस लेवल का कोई क्वेश्चन आता है टाइप 1 का और टाइप 2 का तो आप सभी कर लेंगे, एवरीबॉडी। बहुत सिंपल सा। अब देखिए टाइम एंड वर्क अभी सब कुछ नहीं है, मैं फिर बता दूं, याद दिला दूंगा आपको, याद दिलाता रहूंगा बीच में। अभी टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है। शुरुआत मतलब अभी आपने 10% भी नहीं पढ़ा है टाइम एंड वर्क। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप कल की क्लास में बोलने लगेंगे सर मजा आ गया, टाइम एंड वर्क मतलब ये होता है, हम क्या समझते थे और क्या हो रहा है, जो लोग पढ़े हुए हैं ना। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा है जो RS अग्रवाल, आप सभी ने सुना होगा, एक RS अग्रवाल नाम की बुक है। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस क्वेश्चन के साथ ऐसा है कि 5 to 6 years ago when I was discuss the time and work without solving this question, so every one member of the class asked this question in my doubt, always ask this question in doubt। ये क्वेश्चन इतना तगड़ा हो गया लोगों के लिए, लेकिन है कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है। what is aptitude is all about? So aptitude is all about language. How do you perceive something? How do you perceive the language of question? Okay. Now look at this. A does 7/10 part of the work in 15 days. A does 7/10 part of the work in 15 days. Wow.
तो फर्स्ट मैं ये कहूंगा, अब देखो हर बच्चा ये कहेगा कि सर पूरा काम जो है वो 150/7 डेज में करेगा, बात खत्म। लेकिन आप थोड़ा पढ़ो तो इसे। आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग। अब मुझे बताइए अगर 7/10 पार्ट हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क इज व्हाट, 3/10 ऑब्वियसली। आफ्टर दैट ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days with the help of B, with the help of B, with the help of B, they will complete 3/10 part of the work in 4 days. मुझे ये बताइए ए एंड पी टुगेदर 3/10 पार्ट 4 days में करते हैं, तो वे टुगेदर कंप्लीट पूरा कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहेंगे 40/3 days में कर देंगे। मतलब ए एंड पी टुगेदर कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 40/3 days. And what they are asking, in how many days A and B together can do the same piece of work? So already knew this. But 40/3 is what? 13 1/3 days. बस इतना सा कंफ्यूजन था लोगों को, आंसर क्वेश्चन में रखा हुआ है बट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया हमारे साथ, हमें तो पता नहीं। वैल्यू टफ दे दी तो क्या करें, ये क्या करें, वो क्या करें, कुछ नहीं करना आप। Now, and move to the next question. Look at the next question. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ कुछ, ये जो आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अमेजिंग, थोड़ा सा ब्लर जरूर दिख रहा होगा बट क्वेश्चन बहुत अमेजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम से कॉपी करके मैंने रख दिया। रमेश एंड सुरेश could finish the garden cleaning in 3 days. What they are saying? देखिए बेसिक अगर आपका अच्छा है तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से समझना आ जाए। अगर आपका बेसिक कहीं भी गड़बड़ है तो इस क्वेश्चन में आप मार्क खा जाओ। ध्यान देना भाई। रमेश एंड सुरेश 3 दिनों में बगीचे की सफाई कर सकते हैं, मतलब रमेश एंड सुरेश could finish the garden cleaning in 3 days. रमेश एंड सुरेश can do the piece of work in 3 days. तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि पर डे वो कितना काम करते होंगे, तो आप कहीं सब 1/3 काम करते होंगे वर्क पर डे, 1/3 वर्क पर डे डन बाय रमेश एंड सुरेश। फिर क्या कह रहे हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर फ्यू डेज। अब मुझे बताइए इफ दे वर्क टुगेदर फॉर फ्यू डेज, तो फ्यू डेज में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा? तो आप कहिए सर एक दिन में करते हैं, पर डे में करते हैं 1/p, तो फ्यू डेज में q/p वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। यस और नो? यस और नो? नाउ सो रमेश एंड सुरेश फ्यू डेज में q/p वर्क कर देंगे। यस, अब ध्यान देना, रमेश फॉल सिक and the remaining cleaning was completed by Suresh in R days, and the remaining cleaning was completed by Suresh in R days. Wow, बेटा पहले ये बताओ कि रिमेनिंग बचा क्या था? रिमेनिंग बचा क्या था? तो मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, देखिए बात ऐसी थी, टोटल वर्क था 1। यस, टोटल वर्क 1 ही होगा। रमेश और सुरेश ने q/p वर्क कर दिया है, तो p माइनस q/p ये वर्क आपका बचा है, बोलो। और ये वर्क R डेज में सुरेश ने किया था। बोलिए बात सही है कि नहीं है? ये बात दिमाग में घुस रही है नहीं घुस रही है, ये बताइए सही। सबसे पहले बताइए, अब मुझे बताइए अगर R डेज में इतना काम किया है तो 1 डे में कितना करेगा? तो आप कहेंगे PR करेगा। बोलो बात सही कि नहीं? अब सुरेश अगर 1 डे में इतना काम करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे PR P माइनस Q काम करेगा। यस और नो? and the Suresh done PR upon P minus Q, which is option in option number B. Yes. और भाई मैं एक बात देख रहा हूँ कि बहुत देर से बहुत सारे लोग जो हैं वो लीव हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, लीव हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो क्या इश्यू है भाई आप लोगों को? क्या इश्यू आ रहा है ये बताइए। मीटिंग में कोई इश्यू है? समझ में नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, स्पीड तेज है, तो बताइए, इसे कंसिडर करेंगे। बट ये बार बार लीविंग ज्वाइनिंग खेल खत्म कीजिए। अगर आपका कोई कॉल आता है ड्यूरिंग टू द क्लास, प्लीज इग्नोर द कॉल, ठीक? अदरवाइज क्लास विल बी डिस्टर्ब। ठीक है, सुधाकर जी अब ज्वाइन हुए ना, तो द क्लास विल बी डिस्टर्ब। एंड अंजलि कुमारी ऑल्सो ज्वाइन। पहले बात कर लूं मैं इन दोनों से। हाँ जी सुधाकर जी वेलकम है आपका, अंजलि जी वेलकम है आपका।
तो फर्स्ट ये बताइए कि आप क्लास में स्टार्टिंग से हैं या फिर अभी ज्वाइन हुए? सुधाकर एंड अंजलि, प्लीज टेल मी, आप स्टार्टिंग से क्लास में या अभी ज्वाइन हुए? सर स्टार्टिंग से ये बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है मेरा, इस वजह से। प्लीज मेक योर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। ओके, यस सर, यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सॉरी, मैंने आपसे देखो अभी ये डिस्कस किया था कि रमेश एंड सुरेश कैन डू कुड फिनिश द गार्डन इन 3 days, कुड फिनिश द गार्डन इन 3 days। अब मुझे बताइए कि रमेश एंड सुरेश कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, देन इन हाउ मेनी डेज वर्क डन बाय इन अ सिंगल डे? 1/p, and you will say कि the work together, when they work together, Ramesh and Suresh work together for few days, few days इनने काम किया, तो मुझे बताइए Q/P वर्क कर दिया होगा। अगर few days इन्होंने काम किया तो Q/P कर दिया होगा। अब मैंने ये कहा था कि टोटल वर्क 1 है, Q/P कर दिया है, P माइनस Q/P आपका ये वर्क बचा है, रिमेनिंग वर्क, जो कि किसने किया? रमेश फॉल्स से रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग क्लीनिंग वाज कंप्लीटेड बाय सुरेश, ओनली सुरेश इन आर डेज। तो आर डेज में सुरेश ने P माइनस Q/P करा था, तो मैं कहूंगा 1 डे में कितना होगा तो P माइनस Q/PR। या सुनो, द टोटल डेज कंप्लीटेड, टोटल डेज टेकन बाय सुरेश इज PR/P माइनस Q। तो ये आप लोगों का आंसर आ चुका था, बट now I'm telling you to find out the number of days of रमेश। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर रमेश इस पूरे काम को अकेला अलोन करता है तो कितने दिन उसको लगते, ये बताइए जल्दी से। आप लोग सॉल्व करके देखें, आप ये नहीं बोल देना कि सर ये ऑप्शन नंबर 2 था तो सिर्फ यही आंसर होगा, नहीं, सॉल्व करके देखिए कि आपका सेटिस्फाई हो पा रहा है, क्या आपका आंसर आ पा रहा है बच्चे? P minus Q/PR। P माइनस Q/, नहीं बेटा, मैं पूछ रहा हूँ रमेश के बारे में, ये आएगा कैसे? मतलब ये जो आंसर है, आंसर तो आपको पता है कि सुरेश की वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है, वो भी ऑप्शन में, तो रमेश आंसर इज दिस PR/R माइनस P प्लस Q। बट हाउ यू कैन गेट दैट, यू कैन गेट द आंसर, so you can get the answer by these। देखो, look at this, Ramesh and Suresh can do 1/P work in a day। बोलो यस, बोलो हाँ जल्दी। Ramesh and Suresh can do 1/P work in a day, 1/P work in a day Ramesh and Suresh together can do, and Suresh alone can do P minus Q/PR work in a day। क्लियर हो गई बात? अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? रमेश का पर डे का वर्क मिल जाएगा, या सुनो, बाय टेकिंग एलसीएम, PR का PR एलसीएम आएगा तो R माइनस P प्लस Q। बेटा ये रमेश का पर डे का वर्क आ चुका है, एंड नाउ द टोटल डेज टेकन बाय द रमेश इज PR/R माइनस P प्लस Q। आर यू ऑल डन? Are you all getting my point? Yes sir। Any doubt? Now move to the next question. Move to the next question. Next question is from the type 3. The next question will be from the type 3. And मैंने आपसे कहा था, देखिए टाइप 3 में अब जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? क्योंकि अब आपका एक हेडिंग दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, लीविंग ऑन ज्वाइनिंग। तो लीविंग ऑन ज्वाइनिंग जो है वो आपको टाइप 3 से मेंशन करना है, और थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। क्या होगा देखिए, अब ए और बी काम कर रहे थे, ठीक है, करते रहेंगे, एंड दे विल कम डू द वर्क एंड दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एंड आफ्टर सम डेज ए और बी लीव द वर्क और ज्वाइन द वर्क, व्हाटएवर दे विल आस्क इन द क्वेश्चन। ओके, सो द क्वेश्चन रीड करें। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, A and B can complete a piece of work in 18 days and 24 days respectively. A and B can complete a piece of work
in 18 days and 24 days respectively. First of all, you will have to find out the total work out of 18 and 24, which is 72 is the total work. 72 work done by A in 18 days. The total work in a per day is 4 and a per day is 3. A and B together can do 7 work per day. देखो एक बात सुन लो, मैंने आपको ये बोला था, क्वेश्चन चाहे कितना भी इजी हो चाहे कितना भी टफ हो, आपको टाइम एंड वर्क के एवरी क्वेश्चन में टोटल वर्क तो निकालना ही है, पर डे का वर्क निकालना ही है, चाहे कुछ भी पूछे, ये तो आपको निकालना ही निकालना है, ये तो कंडीशन है, मैंडेटरी है। अगर वो नहीं भी पूछे ना तो भी आप निकाल के रख रहे हैं, ठीक है। एंड नाउ अब जैसे ही आप आगे पढ़ेंगे, अब देखो क्वेश्चन की भाषा ही बदल जाए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी। दे स्टार्ट द वर्क, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days एंड व्हाट, ये 72 वर्क था। तो देखिए ऐसे लीविंग और ज्वाइनिंग वाले क्वेश्चन को जब भी आप डिस्कस कर रहे हो, तो इनिशियली आप जब सीख रहे हैं ना, बेसिक सीख रहे हैं, तो इनिशियली जितना टोटल वर्क है उतनी एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। 72 एक लाइन ड्रॉ कीजिए, क्योंकि एक 72 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, तो 72 रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करिए ना, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाइए, सेम टू सेम जैसा वो कह रहा है वैसा करिए। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days। अब मुझे बताइए, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर फॉर 8 days। A and B can do 7 work in a day and work together for 8 days, and now the work was completed is 56. Yes or no? So 72 work में से 56 work done हो चुका है, and now the remaining work is 16. And what is occurred here? And now and then A left. A का क्या हुआ? A के गांव में आगे शादी, अब A को जाना पड़ा छोड़, तो ये चला गया भाई शादी में, छोड़ के चला गया काम, बीच में से काम छोड़ गया, तो अब बी अकेला काम करेगा। आपको पता है, बी कंप्लीट द अलोन 16 वर्क इन टू फिनिश द जॉब। यस और नो? बी विल डू 3 वर्क इन अ डे। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट? ही विल कंप्लीट द 16 वर्क 5 1/3 days. Yes or no? So the answer is 5 1/3 days. But remember one thing, the remaining work was completed in B by B in. अब आपसे अगर क्लियरली ये कहा गया है द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन, द रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड बाय बी इन, अगर ये रिमेनिंग वर्ड एग्जैक्टली मतलब आपको दिया गया है, मतलब स्पेसिफिकली देकर बोला है कि हाँ भाई रिमेनिंग ही निकालो, तो आपका आंसर सिर्फ 5 1/3 होगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपसे पूछता देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी डन, तो आपको 8 + 5 1/3 आंसर देना होगा, मतलब 15 1/3 days। But remember one thing is to be remember is that कि अगर मान लो ये भी ना कहे कि टोटल वर्क एंड ये भी ना कहे कि रिमेनिंग वर्क, तो ये कहे सिर्फ how many days taken by both of them to complete the whole work, to complete the work, but that's it, whole work नहीं, to complete the work, so you will consider the total number of days. Okay, जब तक आपको स्पेसिफिकली ना बोले कि रिमेनिंग, तब तक आपको रिमेनिंग जवाब नहीं देना, बस इतनी बात क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ डाउटफुल हो जाते हैं, एग्जाम में जब बैठते हैं तो यहाँ उनको बहुत बड़ा डाउट होता है अब क्या करेंगे। नाउ एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगेन एंड अगेन आप लोगों की बेटा क्लास चलती है क्या मॉर्निंग से? आप मुझे ये बताइए, क्या मॉर्निंग से आप लोगों की क्लास रहती है क्या? मतलब बहुत सारे बच्चे जो है वो लीव हो गए हैं, तो उनका कारण यही हो सकता है कि इंटरनेट इश्यू हो, इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा हो उनका, है ना। आप लोगों की कॉलेज क्लासेस रहती हैं क्या? हाँ जी सर आफ्टर 9 o'clock होती हैं। ओके, आफ्टर 9 o'clock होती हैं। अच्छा 9:40 सर। 9:40, हाँ मतलब कंटिन्यू क्लास चलती है ना, तो इंटरनेट डेटा इश्यूज बहुत होते होंगे आप लोगों को, तो कल से थोड़ा सा डेटा कंज्यूम करके और सेव करके रखिएगा, ठीक है, इससे आप इस क्लास को प्रॉपर्ली ले पाए, क्योंकि क्लासेस सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नाउ so move to the next question. The next question is on your screen now. A and B can do a piece of work in 45 days and 40 days respectively. So A can do a piece of work in 45 days and B can do it in 40 days respectively. The total work is what? The total work is 360.
अब आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे सर हमें तो एलसीएम लेने नहीं आता, हम क्या करेंगे? तो मैं आपको कहूंगा अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और कुछ नहीं। मैं आपको सिखाऊंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, फिलहाल आप ऐसे काम करें। नाउ 45 8s are 49s are a plus b together can do 8 plus 8 is 16 plus 17 work in a day. And now what they're saying, they begin the work together but a lapse after some days. They begin the work together, 360 is the total work, and they begin the work together. They begin the work together. A left after some days. So some days after A left, and we will continue the work. Okay. And remaining work can complete by B in 23 days. The remaining work completed by B in 23 days. Okay, and B completed the remaining work in 23 days. It means that कि B ने 23 days में remaining work complete कर लिया, और आप ये जानते हैं अच्छे से कि B जो है एक दिन में 9 काम कर 9 वर्क पर डे करता है, तो 23 डेज में इसने कितना कर लिया होगा? तो आप कहेंगे सर 207 वर्क डन बाय B in 23 days. 207 is here done. Now 153 is remaining, which is done by A and B together, and A and B taking 17 units per day. So the 9 days they will take to complete 153 work together. Yes or no? After how many days work did A leave? तो आपसे पूछना, बताओ after how many days? तो आपने ये कहा ना कि 9 days after A leaves the job. Yes or no? स्पेसिफिकली आपको ये कहा गया है कि कितने दिन बाद उसने ये काम छोड़ा था। क्लियर है? नाउ and now move to the next question. The next question on your screen is here. A, B, and C can do 24, 9, and 12 days respectively. A, B, and C can do a piece of work in 24 days. B can do it in 9 days. And C can do it in 12 days respectively. The total LCM is what? 72. 24 3s are, 9 8s are, 12 6s are. B and अब देखिए जैसा ये कहे वैसा करना है आपको, बस इतना तो करना ही करना था. And 72 is the total work. And what they're saying, B and C start together. If B and C start working together, तो B और C ने काम को स्टार्ट किया भाई. B और C कितना काम करते हैं? 14 वर्क पर डे together, and after 3 days leave the work. तो 3 days तक इनने काम किया and leave the work. तो मुझे बताइए दोनों मिलकर 14 वर्क पर डे करते हैं, तो 3 दिन में 42 कर दिया होगा, and the remaining work is 30, and they leave the work. Find how many days A will complete the remaining work. So remaining work 30 is completed by only A is taking 10 days now. Are you all got it? Have you all got my point, buddy? Have you all got my point? Yes, sir. Okay. चलिए, तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और देखिए आज स्टार्टिंग है, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक. आप देखिए मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग से अगर आप पढ़े होंगे ना तो अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है. इसे हम बेसिक कहते हैं बच्चे. मैंने कहा ना 250 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं. 250 क्वेश्चंस में अब ये 22 क्वेश्चंस, वो भी लेवल 1 2 और 3 चल रहा है. तो टाइप 1 2 और 3 तो बहुत ईजी है. 4 भी ईजी है, 5 भी ईजी है. 7 से आपकी थोड़ी डिफिकल्टी मैं आपकी बढ़ा दूंगा. जहां से अल्टरनेट टाइप शुरू होगा ना कल, तो वहां से हम आपकी थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा के चलेंगे, तो आपको बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग, अलग ही आनंद आने लगता है. Now, A and B can do a piece of work in 28 days and 35 days respectively. A can do 28 days and B can do it in 35 days respectively. They begin the work, तो मुझे एलसीएम लेना ही पड़ेगा. अब राजी नहीं, ऐसे लेना पड़ेगा. तो 28 5s are 140 and 35 4s are. A plus B take 9 work per day. They start work together, but A left after some days. They start work together and A left after some days. 140 is the total work, and they start together and A left the work after some days. After some days, I don't know how many days. B complete the remaining work in 17 days. Oh wow.
Now B can complete 4 work in a day, 17 days में 68 वर्क डन किया होगा। तो 68 वर्क मतलब 72 वर्क यहाँ पर ए और बी ने किया है। ए और बी एक दिन में 9 वर्क करते हैं, 8 डेज में काम कर दिया। पूछो क्या पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क डिड ए लीव? ओनली 8 days. So hopefully you all understand. I will got my point, buddy. और थोड़ा सा अपना कल अपना थोड़ा एनर्जी लेवल हाइक रखिएगा सभी लोग, ठीक है? एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाइक रखेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो मतलब 1 घंटे क्लास लेने के बाद लीव कर गए, करीब 12-13 लोग लीव कर गए, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और आपके जितने भी कलीग हैं, आपके फ्रेंड हैं, तो आप उन लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके, डिपार्टमेंट की तरफ से शायद सभी को मैसेज मिल गया होगा, बट आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कीजिए। नाउ A, B and C can complete a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively. This question is very much important. A, B and C can do 10, 12 and 15 days respectively. Please mute your mic. Adyatam Srivastava. Now, A, B and C can do a piece of work in 10, 12 and 15 days respectively, and now the 60 work is the total work. 60 work done by A in 10 days, 6 days, 6 work per day, 5 work per day and 4 work per day. A plus B plus C together can do 15 unit per day. Okay? अब क्या कह रहे हैं, देखिए 60 वर्क था, टोटल वर्क was 60. A left the work before 5 days of its completion. अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग। They start work together. They start the work together. They all have been start the work together, but A left the work before 5 days of completion. तो completion तो यहाँ हुआ था, and A left the work before 5 days. It means what? If 5 days before A ने left किया था, A यहाँ छोड़कर चला गया था. B also left the work 2 days after A left. तो A के छोड़ने के 2 दिन बाद, मतलब यहाँ पर ये आफ्टर 2 days ऑफ A leaving, ये 5 days का गैप था, आफ्टर 2 days B भी चला गया। तो ये दिन जो स्लॉट बचे हैं, ये 3 days का स्लॉट बचा है कि नहीं बचा? अब मुझे बताओ, all the 3 are working together, all the 3 are start working together, and now A leaves the work, then B and C continue the work here, and now B leaves the work, C will continue the work here. अब आप पुट कर दीजिए कि C ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो C एक दिन में कितना करता है? 4, तो 3 दिन में 12 वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। B and C together can complete 9 unit in a day. In 2 days, they will complete 18 units. 18 and 12, 30 units done by here, and the 30 unit remaining is done by here. By all of three can do 15 units per day. The total work done by all of 3 in 2 days. And now, in how many days was the completed and was the work completed? तो देखिए ये नहीं कहा कि टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड या वर्क रिमेनिंग वर्क वाज कंप्लीटेड, तो आपको बताना है टोटल। तो टोटल बताइए, देखिए 2 days यहाँ लगे, 2 days यहाँ लगे और 3 days यहाँ लगे, तो 7 days आपका टोटल टाइम लगा। बताइए, am I clear to all of you? Am I clear to everyone? Everybody should have to clear this concept. Yes, sir. Okay. Please confirm me while asking. Okay. Now look at this question and solve this question by self. Solve this question by self immediately. C can do it in 40, C can do it in 60. This is 25, 40, 60. LCM will be 5 होगा सर। 600. 25 into 24, 15.
and 10. A plus B plus C together can do it in 49 work per day. And now start the work. All the three start the work together and work for 5 days. All the three start the work together and work for 5 days. 600 is the total work. All the three start work together and work for 5 days. It means 245 work done by all of them. All of three is here. Then A left and B left 10 days before the completion. अब देखो क्या हुआ था, आफ्टर 5 days A left कर गया, तो B और C ने कंटिन्यू किया होगा वर्क को, बट B ये कह रहा है कि मैंने काम खत्म होने के 10 दिन पहले भी छोड़ दिया था, तो B ने काम खत्म होने के 10 दिन पहले छोड़ दिया था, मतलब ये आखिरी के लास्ट के 10 days तक सिर्फ C ने अकेला काम किया था. I will got it? Yes or no? लास्ट के 10 days तक सिर्फ C ने काम किया था, क्योंकि ये C B ये कह रहे थे A, B and C together can complete a piece of work. A, B and C together they start the work, and after 5 days A leaves the work and B and C continue the work, and before the 10 days of completion B is also left. So in the last 10 days only C was working. C working in a day is 10. The total work done by C in the last 10 days is 100. 245 is here. 345 is done almost. Then the remaining work is 255. Yes or no? Out of 600, 245 and 100, so 345 is done. So the remaining work is 245, which is done by B and C together. It is done by B and C together. B and C can do 25 in a day. In how much day? In how many days? They will do 255. So 10 5 by 25 days, which is 10 1 by 5 days. Yes or no? Yes or no, guys? Have you all done? Yes, sir. बोलिए, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ जी. Next question. चलिए. So next question on your screen now. A can do a piece of work in 12 days, B can do it in 15 days, and C can do it in 20 days. 12, 15, and 60. 12, 15, and 20 is 60 days. The total work is 60. 5s are, 4s are, and 3s are. And they start working together. We leave the work after working 3 days. And C leaves the work 3 days before of the completion. क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 60 is the work. They start work together. We left the work after working 3 days. B left the work after working 3 days. B ने left किया work after working 3 days. तो मैं ये कहूंगा कि भाई 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना. A plus B plus C can do 12 in a day. In 3 days, 36 work was done, and after working 3 days, B was left, A and C was continued, and C left the work before 3 days of the completion, and the last 3 days is only work by A. 3 into 5 is 15 work done by A in last 3 days, and 36 work done by 3 of them. Start 3 days, so 36 and 50 is 51 work was done, and 9 work was completed by A and C in the middle of the work. Okay, so A and C is working. A and C is working 8 units per day. In how many days the 9 units got done? So 1 by 8 days they will take to complete the 9 unit. And now what they are asking to is that in how many days the total work was finished. So that 3 days here, 1 by 8 days here, and 3 days also here. 3 plus 3 6 plus 1 is 7, 1 by 8 days. तो देखिए 1 by 8 से आप कैप्चर कर सकते हैं आंसर को, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी. बताइए, तो आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको यहाँ तक की बातें अगर क्लियर ना हुई हो तो पूछ सकते हैं. क्या सभी को क्लियर है? आर यू ऑल डन? Yes, sir. ओके, सो गाइस मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है ना, और वी विल कंटिन्यू बाय टुमारो.
with the same topic of time and work. Okay. और किसी ने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो बेटा ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मैं आपको एक बार लिंक और शेयर कर दिया मैंने, तो आप लोग अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको रिकॉर्डिंग लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आज की क्लास की, और कंटेंट जो है मटेरियल वगैरह वो भी आपको यहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो अपना जो मैसेज है वो भी कन्वे कर दीजिएगा अपने कलीग्स तक, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार का कोई इशू ना हो। और एट राइट 3 PM all you have joined the classes, okay, regularly, and please leave the feedback after completing this session. Okay, thank you so much, and we will meet tomorrow. Goodbye. Sir, when Anji, Hello, yes. sir, when we get recording? Recording you will get the recording after 7 PM. Okay, on the WhatsApp group. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Goodbye. Thank you, sir. Thank you. Till then, and take care. Goodbye. And tomorrow you will have to join the class right 3 PM. Okay. Goodbye.